Okay, very good morning to all of you and welcome back. All I hope charged up after morning CPT. Nobody really likes a morning CPT, isn't it? At least this is what I feel. I don't know. What's your opinion in it? ठीक है ना? तो चलो, let's start. We already have messages from good morning from Rishabh, Mansha, and we have Ishita in the waiting room. Harshit. Parth, Shashi. Okay. जसराज सेज की चलो सीपीटी तक तो ठीक है, उसके बाद क्लास नहीं होनी चाहिए. लॉट्स ऑफ विशेस वी हैव अभी, है ना? बहुत सारे हम लोग विशेस करते हैं. वेल, सानिया has asked you what is the syllabus of CPT next. So next the CPT है, that is physics, and the syllabus will be, ठीक है ना? The syllabus will be full SHM. अभी हमने लास्ट SHM ही करा था ना? हाँ, SHM plus liquid statics. Liquid statics of liquids. The solid नहीं आएगा, properties of matter. ये सिलेबस, ठीक है ना? नहीं, सॉलिड्स नहीं, लिख देते हैं. नो सॉलिड्स, ठीक है ना? तो दैट्स द सिलेबस है. चलो, लेट्स कंटिन्यू. कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो बुएंट फोर्स होता है, ये होता क्या है ना? दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम. नाउ व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इट? if I look at, let's say, liquid and a solid, तो एक इधर से फोर्स आएगा और कुछ इधर से फोर्स आएगा. इधर से तो ऐसे आएगा, इंक्रीजिंग, है ना? इस तरीके से, और नीचे से उससे भी ज्यादा फोर्स. तो ये जो फोर्स आ रहा है ना, इधर तो साइड में कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ऊपर नीचे फोर्स क्रिएट हो रहा है. सो द नेट फोर्स अपवर्ड दैट इज क्रिएटेड is given by V into rho L into G, and that is what is called as FB. आजकल FB बोलते हैं लोग, फेसबुक समझते हैं, पर फिजिक्स का FB is buoyant force, and that is V rho L G. अब ये V क्या है? That's important. Is V the volume of the solid? Is V the volume of the solid? Yes or no? No. Okay, there are some answers, and that is no. Parth says yes. Aditya Mathur no. Dhruv Sharma no. Sania no. Somdatta no. Volume of the liquid displaced is what Krishnagar says. Aryanjan says volume of the displaced liquid. So no. Sneha Agarwal says no. Actually देखो क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं एक स्मॉल h लेता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं कैपिटल H लेता हूँ, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A होता है, सपोज A, तो जो बुएंट फोर्स बनेगा वो बनेगा क्या? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या होगा? H plus H रो into G या रो L into G into A माइनस अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? H into रो L into G into A. इसको माइनस करोगे तो बनता है H A रो L into G. Now what is H into A? Is nothing but the volume of the solid. So that's equal to volume of the solid into rho L into G. However, even when I said volume of the solid, yet I am asking this question again: is V supposed to be the volume of the solid or something else? The answer is that it may not be always equal to the volume of the solid. It may not be always equal to the volume of the solid. For example, let's say instead of this situation, suppose the situation is this. Now in this case, the buoyant force will be only
because of this part of the volume. And this part of the volume will be called as displaced volume. इसलिए इसका जो फॉर्मूला है इसमें मैं लिख दूंगा VD. VD. VD is essentially what? Displaced volume. VD is essentially what? The displaced volume. कि कितना वॉल्यूम सॉलिड ने अपने जो है लिक्विड में से हटा दिया अपने जगह से. That is the idea of displaced volume. Nimisha has asked, is gravitation coming in CPT? Well, the answer is no. Gravitation is not coming in CPT. Should I check once? चलो मैं इधर नहीं भाई, कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं चेक कर लूंगा. वो एक्चुअली ना ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं होगा तो ढूंढना पड़ेगा. चलो, so this is what is the idea of displaced volume and buoyant force. Now let's look at a fully solid object. So let's look at a fully solid object out here. Now what is the weight of the solid? Weight of the solid will be equal to V into rho S into G. This we are discussing in the context of a fully immersed body. Let's say if the weight of the solid is more than the buoyant force, then what will happen? The body will sink. If the weight of the body is equal to buoyant force, the body will stay there. If the weight of the body is less than the buoyant force, then the body will move up and float. So what we are saying is that if V rho S G is greater than V rho L G, so the body is what? Sinks. In other words, sink करता है कब? If rho S is greater than rho L, implies sinks. If rho S is less than rho L, implies floats. And if rho S is equal to rho L, implies just floats. Or you can also say that if the density is equal to that of the liquid, then it can stay wherever you keep it, inside the liquid. Partially outside the liquid नहीं होना चाहिए. अगर inside the liquid कहीं पे भी रख दोगे और अगर density बराबर है, in that case क्या होगा ना, वो वहीं पे रह जाएंगे. क्यों? उसका weight और buoyant force बराबर है, तो equilibrium, it will stay there. These are the different situations. However, if I ask a question, and that is, what will happen? Let's say, if I ask a question, that is, what will happen? Let's say, if suppose a ship, if you take, in which the rho S is greater than rho L. Ship generally iron steel से बनता है, तो liquid का density approximately 1 gram per centimeter cube होता है, और rho S is what? Solid, that is steel or iron, उसका density approximately 7.8 gram per centimeter cube होता है. तो यहाँ पे तो rho S is greater than rho L है. Rho S is greater than rho L. क्या होना चाहिए? Sink करना चाहिए. But though rho S is greater than rho L, but we know that a ship floats, or you can say mostly floats, leaving aside Titanic and all. ठीक है? Well, Krish has asked, H rho G is pressure at height H. Actually, don't call it as height. H rho G is pressure at depth H. Depth याद रखना, top surface से measure किया जाएगा, free surface से measure किया जाएगा. That's important. ठीक है? Aryan Jain has said कि how does it float? इसका मैंने क्वेश्चन पूछा. तो Aryan has said कि due to salty water, Bhavya says due to hollow space, Jasraj says salt water की वजह से, Shreyasi says because they are hollow from inside. The correct answer is that they are hollow from inside. You know what? When you're saying salty water, तो ध्यान रखना, pure water is 1 gram per cc only at 4 degrees Celsius. That you know. और अगर sea water लोगे तो 1.0 something होगा. 1.0 something. So therefore ऐसे नहीं है कि if you take the sea water means you know the density will be like shooting up. ऐसे भी नहीं. ठीक है ना? So that's the case.
ठीक है? तो therefore अगर एक शिप फ्लोट करता है, that is because due to hollow portion, what happens is that the density of the ship is much less than the density of iron or steel by which it is made up of. देखो शिप जो बनता है वो लोहे और स्टील का ही बनता है, एग्रीड, लेकिन अंदर से खोखला होता है, तो जब उस पार्ट को भी इंक्लूड करके तुम डेंसिटी निकालोगे एवरेज, that average density should turn out to be less than that of the liquid, and in this case water. Therefore, due to the hollow portion, rho of the ship is much less than rho r. Definitely, rho of the ship is less than rho of water. ठीक है? Hence, ship floats. यानी ऐसे नहीं कि हमने कोई लॉ वायलेट किया, क्योंकि अभी तुमने बता दिया मैंने तो, बट अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था रो एस ग्रेटर देन रो एल मींस द बॉडी विल सिंक, और ये जहाज के लिए भी ट्रू है। टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि टाइटैनिक में जब वो क्रैश कर गया ना एक जगह आइसबर्ग के साथ, तो क्रैक कर गया, उसमें पानी घुस गया, तो अगर पानी घुस गया तो जो हॉलो पोर्शन था उसमें भी मटेरियल आ गया, तो इसलिए क्या होगा ना, जैसे ही उसका एवरेज डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ वाटर हो गया, यानी शिप का एवरेज डेंसिटी जैसे ही मोर देन दैट ऑफ वाटर हो गया, इन दैट केस क्या हो गया ना, इट विल सिंक। दैट इज व्हाट हैपेंड विद टाइटैनिक आल्सो। इन फैक्ट दैट विल हैपन विद एनी शिप, ऐसे नहीं कि टाइटैनिक तो चलो मूवी हो गया, फेमस हो गया ना, बट एनी शिप विल सिंक द मोमेंट इट्स एवरेज डेंसिटी becomes more than that of water, चाहे वो salty water ले लो चाहे नॉर्मल वाटर ले लो, ठीक है? क्रिस सेज की वीडियो आज बहुत रुक रहा है। अभी एक काउंटर लॉजिक आया है, लेट मी रीड दैट आउट। द काउंटर लॉजिक दैट हैज कम अप इज फ्रॉम क्रिस, एंड दैट इज खाली पोर्शन तो होता है पर वहां पर बहुत सारा सामान भी तो होता है, सब भारी भारी देखो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, इट इज जस्ट दैट उन सबको लेके टोटल मास ऑफ द शिप इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ विद इन द शिप अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द शिप, अगर वो डेंसिटी लेस देन दैट वाटर होगा तो ही शिप फ्लोट करेगी, अदरवाइज शिप विल नॉट फ्लोट। दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना? यानी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करेंगे जब उसका डेंसिटी क्लियरली फुल्ली सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसमें कोई हॉलो पोर्शन नहीं है, तो यानी उसका डेंसिटी अगर लेस देन लिक्विड हुआ तो ही फ्लोट करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन शिप में क्या हो रहा है, जो मटेरियल है उसका डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन हॉलो पोर्शन को ऐसे एवरेज डेंसिटी कम हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एबल टू फ्लोट। दैट इज द रीजनिंग। चलो एनीवे लेट्स प्रोसीड। नाउ आई एम आस्किंग a question, and that is, suppose I say that this object is floating, a cone, solid cone फ्लोट कर रहा है सच दैट कि अगर इसका अगर कोन का अगर हाइट h होता है तो h/5 या h/4 फ्लोट कर रहा है, ठीक है? अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो होता है, in that case find out the density of this. चलो go ahead. If the density of the liquid is rho given, find out the that of the solid. Here rho s, find out rho l is equal to rho naught, rho s is equal to कितना होगा? That is the question. Go ahead. देखो ये जो शिप वाला जो है ना, शिप का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना। शिप मतलब जहाज बना के समुद्र पार करके फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नॉट समथिंग व्हिच इज रीसेंट, इट इज एंशिएंट। मैं कितना एंशिएंट मैं बताता हूं तुमको। मोहनजोदारो हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दैट इज सपोज्ड टू बी अराउंड 5000 इयर्स ओल्ड। 5000 इयर्स कम नहीं बोल रहा हूं मैं। अब पता क्या है, मोहनजोदारो के हड़प्पा के सील्स मेसोपोटामिया में मिला, दैट मींस वो ग्रीक रीजन में मिला, यानी लोग उस समय भी आना जाना करते थे और टैक्स वसूलते थे।
जो जहाज से एक दूसरे जो प्रोडक्ट्स जाते थे ना, उसके जो है टैक्स वसूली होता था। ठीक है ना? नॉट ओनली दैट, इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एट वन स्टेज वाज सपोज्ड टू बी वर्ल्ड फेमस। अब तो इंडिया थोड़ा पीछे हो गया इन द लास्ट 2-3 सेंचुरीज, पर उसके पहले वर्ल्ड फेमस थे। और यही इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने काफी एरियाज को कब्जा कर लिया था। उस तरफ सारा सुमात्रा, जावा, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, ये पूरा जो रीजन है ना, दैट यूज्ड टू बी रूल्ड बाय इंडियन किंग्स, मोस्टली चालुक्य किंग्स। तो दे यूज्ड टू हैव अ फ्लीट ऑफ 1000 शिप्स। इमेजिन करो, 1000 से ऊपर जहाज हुआ करते थे एक जमाने में, एक एक किंगडम के पास। ठीक है ना? बट समहाउ कुछ बन गया, आई डोंट नो व्हाट, एंड दैट ट्रेडिशन ऑल समहाउ सफर्ड अ बिट। बट एट वन टाइम इंडियन शिप बिल्डिंग वाज अ ह्यूज इंडस्ट्री। ठीक है ना? चलो खैर, एनीवे, इवन मैं एक आइलैंड की बात कर रहा हूं, देयर इज एन आइलैंड इन द टॉप ऑफ अफ्रीका, शोतोक्रे आइलैंड या कुछ ऐसे नाम है, देखना, कोशोत्रे या शोतोक्रे, शोकोत्रा आइलैंड्स है, शोकोत्रा आइलैंड्स है, ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस सोकोट्रा आइलैंड्स में, लेट्स कॉल इट सोकोट्रा ओनली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सोकोट्रा आइलैंड्स में केव पेंटिंग्स है। नाउ दैट्स नियर अफ्रीका। उसके आइलैंड्स के अंदर जो केव्स है, उसमें केव पेंटिंग्स है जिसमें लिखा हुआ संस्कृत में। so that would like thousands of years old. अब बताओ, एक आइलैंड में अगर इंडियंस गए, देखो संस्कृत गए थे मतलब इंडियंस ही गए थे। अब आइलैंड में अगर इंडियंस गए थे, कोई लैंडलाइन से तो गए नहीं, इसका मतलब जहाज से गए होंगे, एंड दैट वाज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। इमेजिन करो, सोकोट्रा आइलैंड्स, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, सोकोट्रा आइलैंड्स, मैं फिर भी चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना? सो दैट वाज द केस ओनली। द वर्ड इंडियन शिप बिल्डिंग इज लाइक वेरी एंशिएंट, और अब तो खैर काफी कम हो गया। ओके, एक एक आंसर आ चुका है। 27/64 रो नॉट। ओके, सबका आंसर 27/64 आ रहा है, तो लेट मी क्विकली गेट टू द आंसर। पहली बात तो सॉलिड का वॉल्यूम 1/3 pi r square h into density of the solid into g, that's the weight of the solid, equal to buoyant force। buoyant force सिर्फ इस पोर्शन के वैसे होगा, that will be equal to 1/3 pi। अगर मान लो 3/4 होता है, क्योंकि देखो h/4 मतलब 3/4, अगर हाइट 3/4 होगा तो रेडियस भी 3/4 होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 into 3r/4 का होल स्क्वायर into 3h/4 into rho naught into g। वैसे एक और तरीका बताऊं, अगर मान लो कोई सॉलिड है, कोई भी शेप का सॉलिड है, दिस इज अ जनरल रूल, कोई भी शेप का सॉलिड अगर है, और अगर एक और सॉलिड है जिसका डायमेंशंस 1/something है, in that case 1/n, let's say, in that case वॉल्यूम होगा 1/n³ के बराबर। कंपेयर करोगे तो therefore, क्योंकि इस वाले कोन का जो रेडियस और हाइट वगैरह ये सब 3/4h है, और रेडियस भी 3/4 आ रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब। तो therefore I could have also written like this, and that is V into rho s into g is equal to 3/4 whole cube into V into rho L. Now rho L is given as rho naught. That's the case. Is that okay? That's it. Then rho s हो गया equal to 27/64 rho naught. इसलिए देखो सबका आंसर करेक्ट आ गया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक काम करो, अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, Krish, that will answer your question to an extent, and that is कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ तब तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लेस देन लिक्विड होना मस्ट है, बट लेट्स टेक ए हॉलो ऑब्जेक्ट एंड लेट्स सी। तो मैं सपोज कहता हूं कि ये ना एक क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, दिस इज अ क्यूब whose outer dimensions is suppose 10 centimeter and it is floating such that 6 centimeter is inside given, और ये दे रखा है थिकनेस, यानी ये सॉलिड है, अंदर से हॉलो है, ये अंदर से हॉलो है, so this is a solid part and is suppose of dimensions
0.5 सेंटीमीटर, अंदर से पूरा हॉलो है, ठीक है। इफ द लिक्विड इज वाटर दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। माइंड यू, दिस सॉलिड इज फ्लोटिंग एंड इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। तो वो जो जहाज वाला डायलेमा है, आई थिंक वो टू एन एक्सटेंट इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखते हैं इसका सॉलिड का डेंसिटी क्या आता है। चलो गो अहेड, क्विकली फाइंड इट आउट। सर एक आ गया 60/19, अरिहंत, हर्षित 0.41, आदित्य माथुर 0.42। ओके, ये तो वाटर से भी लेस डेंसिटी कर दिया। वाटर से लेस डेंसिटी तो नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि ये हॉलो पोर्शन के बाद भी फ्लोट कर रहा है। अच्छा हो, नहीं नहीं, आवाज एक्चुअली क्रेश नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली आवाज जीरो कर हाँ अब आएगा। अब बोलो क्या पूछ रहे थे? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ही था, तो हमने वो बाइंड फोर्स का एक्सप्रेशन तो वी रो जी जो वो करा था, मतलब ड्राइव करा था, वो तो जब था ना कि जब एयर मतलब ऊपर एयर हो, लेकिन उसमें तो कोन के ऊपर ही कोन ही था, मतलब सॉलिड मटेरियल, तो उसका तो कुछ प्रेशर होगा। हमने तो मतलब क्या ऊपर एयर क्यों बोल रहे हो? नहीं, जब हमने वो वी रो जी वाला एक्सप्रेस करा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया होगा, फिर लिया भी नहीं था वो तो। हमने जब डिराइव किए थे तो हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर के लिक्विड प्रेशर, नीचे के लिक्विड प्रेशर मिला के किए। अब तो मतलब ऊपर का है नहीं, तो ठीक है, तो लिक्विड वाला भी तो इतने ही हाइट के वजह से है ना। लिक्विड का जो प्रेशर वो भी तो इतने हाइट के वजह से होगा ना, या डेप्थ के वजह से होगा। तो यहाँ पे सिर्फ उसी डेप्थ के लिक्विड की वजह से होता है, इतने पोर्शन का डिस्प्लेस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तभी हुआ था ऐसे, तभी तो वीडी लिया था। और इस केस में वीडी लेना था, और इसके पिछले केस में वीडी लिया था, ठीक है ना, ये चीज। तो देखो, जैसे अगर मैं इसके बॉडी का बुएंट फोर्स निकालूंगा तो बुएंट फोर्स कितना आएगा? मैं 10 का स्क्वायर इनटू 6, ये हो गया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इनटू लिक्विड डेंसिटी 1 इनटू जी, दैट इज द बुएंट फोर्स, वीडी rho l g। नाउ दैट विल बी इक्वल टू द वेट। वेट में क्या होगा? वैसे मटेरियल का वॉल्यूम लेंगे। अच्छा, अगर ये 0.5 हुआ तो आउटर वॉल्यूम क्या है? 10, मतलब 10 का क्यूब, और इनर वॉल्यूम क्या हो गया? 9 का क्यूब। क्यों? ये 0.5 0.5, तो ये तो 9 हुआ ना, है ना। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 9 का क्यूब इनटू, सॉरी 10 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब इनटू रो एस इनटू जी, यानी रो एस क्या हो गया ना, 10 स्क्वायर इनटू 6, दैट इज इक्वल टू 600 by 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब। 10 क्यूब मतलब 1000, 9 का क्यूब मतलब कितना? 729 है ना। तो इक्वल टू 600 अपॉन 729, 730, तो 270 बाय 269 है ना, ऐसे कुछ है। सॉरी 271, yeah, 600 upon 271 is the correct answer. Okay, Aryant Jain, Aryant Jain ने अब आंसर दिया है, that is 600 by 271, that's right. देव has asked कि फ्लूइड्स यही चैप्टर है ना? हाँ, फ्लूइड्स का यही चैप्टर है। अभी हम लोग फ्लूइड के स्टैटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ फ्लोटेशन वगैरह वगैरह ऐसा। इसके बाद फ्लूइड का डायनामिक्स भी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। एनीवे, तो यानी रो एस इस बार कितना आ गया? 600 अपॉन 271। देख लो इस मैथमेटिक्स में कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ डिस्कस करना है तो बताओ। हाँ जी बोलो, एनी क्वेरी? कैन वी गो अहेड देन? चलो ठीक, लेट्स प्रोसीड देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज एक स्फीयर फ्लोट कर रहा है such that
यहां से ये r/2 है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन rho naught, और ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो सेंटर से r/2 तक लिक्विड के नीचे ये सारा पोर्शन, और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड के ऊपर। मे बी आई कैन ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इफ यू वांट टू। ठीक है, गो अहेड एंड फाइंड द सॉल्यूशन। चलो, आई थिंक नाउ आई थिंक आई हैव गिवन यू सम टाइम टू सॉल्व। इसमें हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करके वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो स्टार्ट। जैसे ये जो स्फीयर का पार्ट है ना, ये, उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, ये सेंटर है, तो ये सपोज y डिस्टेंस दूर है, तो एक सेंट वो ले लेता हूं सर्कल एट दैट, और इसका थिकनेस सपोज हो गया dy। ठीक है, तो ये r हो गया, फिर इसका डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई इंटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy, और इसका वॉल्यूम क्या होगा ना, r/2 से लेकर r तक, तो ये इस बीच का पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा, ये होगा r/2 से लेकर r तक, ये वॉल्यूम हो गया ऊपर वाले पार्ट का। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज द सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ठीक है ना, या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो द फ्लोटिंग वॉल्यूम इज दिस, नाउ व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, पाई इनटू r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन dy, r/2 से लेके r तक, माइनस पाई इंटू y स्क्वायर dy, r/2 से लेके r तक। नाउ दैट कैन बी सिंपलीफाइड एज इक्वल टू, ये तो y होगा, तो r माइनस r/2 तो r/2, यानी पाई r³/2 माइनस, ये हो जाएगा y³/3, यानी पाई/3 इंटू y³, तो y³ मतलब r³ माइनस r³/8, ठीक है, यानी 7r³/8, तो इंटू 7/8 r³, ये 24 है, 24, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, दैट इज 5/24 बाय r³। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोटिंग वॉल्यूम। तो सबमर्ज वॉल्यूम क्या है, तो देयरफॉर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r³ माइनस 5/24 पाई r³, तो 3 से 8, 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 इज 27/24, 27/24 मतलब हो गया 27/24 मतलब हो गया 3 से 9/8, 9/8 पाई r³। दैट्स इट। उसके बाद क्या, ना डिस्प्लेस वॉल्यूम आ चुका है, तो 9/8 पाई r³ इनटू सॉलिड का डेंसिटी इनटू g इज इक्वल टू 4 by sorry into rho l, that is rho naught into g is equal to 4/3 solid का weight into pi r³ into rho s into g, बस that's it। तो rho s कितना हो गया, सिंपलीफाई कर लो जितना हो सके, नहीं होता ऐसे रख दो, तो that is equal to 27/32 rho naught is equal to rho s is equal to 27/32 rho naught, वो चेक कर लो। ठीक है, प्लीज चेक।
यस, इज दैट अंडरस्टूड? कोई डाउट? अब देख लो अच्छे से, यहां से स्टार्ट हुआ, ये होगा फ्लोटिंग वॉल्यूम VF, यानी जो पोस्टेड लिक्विड के अबव था। तो तुम बिलो का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स अप टू यू। यू कैन आल्सो यूज -R/2 से लेके R तक, दैट विल आल्सो हेल्प, या -R से लेके R/2 तक, दैट विल आल्सो यूज आंसर। ठीक है, चलो just rubbing it off. I hope you are getting it. Next question is on flotation, but is a little different. Suppose एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट है H, सिलेंडर का डेंसिटी ρS है और ये ρL है, और गिवन है ρS is less than ρL, ये गिवन है। यानी सॉलिड का डेंसिटी जब लेस देन लिक्विड होता है तो फ्लोट तो करता ही करता है, डेफिनेटली विल फ्लोट। तो यार ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज लेट्स डिप इट अ बिट एंड देन लीव। तो क्या होगा, ये ऑसिलेशंस करेंगे, इसको थोड़ा सा डिप कर दो और छोड़ दो, तो देखना ये पूरा ऑसिलेशन करेंगे। सो टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस, go ahead, find out the time period of the, so anyway, no answers till now. Jasraj has asked कि किसके टर्म्स में देना है, but in terms of H, ρS, ρL, if required G, बस यही है, बाकी तो आपको कुछ दिया नहीं है ना। तो इसको हम इसके से इमेजिन करेंगे कि देखो दिस इज ऑलरेडी फ्लोटिंग, यानी इस पोर्शन की वजह से जो बुओयंट फोर्स क्रिएट हो रहा है, इस पोर्शन की वजह से वो इस पूरे सॉलिड के वेट को संभाल रहा है। Therefore, अगर मान लो मैं इसको डिप कर देता हूं बाय x, तो सपोज मैंने इसको x डिप कर दिया यहां पे, तो लेट अस से मैंने इसको x डिप कर दिया, तो क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा बुओयंट फोर्स क्रिएट होगा इस पोर्शन की वजह से। So there will be extra buoyant force created. Now why this is important is because some buoyant force is required to even balance the weight of the object. इसलिए देखो वो फ्लोट कर रहा है। अब अगर तुम डिप करोगे, in that case buoyant force बढ़ जाएगा, so that will tend to push it back. So this is called as the restoring force. यानी restoring force क्या होगा ना, extra buoyant force. Restoring force in this case is the extra buoyant force. This will be because of the extra displaced volume, जो कि कितना हो जाएगा, x into area. Let's say इसका area cross section A है, suppose इसका area cross section A है, तो x into area is the extra displaced volume into liquid density, V rho L into G. This is the restoring force. अब आ जाओ मास ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी होगा H A rho S. So this extra buoyant force is going to be responsible for the acceleration. So that will be equal to mass into acceleration. Mass कितना है, H A rho S is equal to H A rho S into A. अब एक लास्ट चीज है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा ना, ये इसका वेट हो गया, मतलब हमने x डिस्प्लेस किया नीचे और छोड़ दिया, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ ना, इसका रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ गया। तो अगर रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ जाए तो इन दैट केस क्या होगा ना, देखो x नीचे, रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर, तो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अगर ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट आ जाए, आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म माइनस a कैंसिल, तो a कितना आ गया, रो L into G by रो S into H into X, रो L into G upon ठीक है, रो L into G upon रो S upon रो S into X into X, ये एक्सेलरेशन आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर,
इससे टाइम पीरियड आएगा, तो फाइनली द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h रो s बाय 0। देख लो ठीक है, ऋषभ has given the right answer। ठीक है, ठीक है, आदित्य माथुर has also given the same answer। Okay, quite a few answers are there। कृष्ण नागर, इनफैक्ट पहले तो आदित्य माथुर ही दिया था, नहीं ध्रुव शर्मा ने भी दिया था, नहीं आदित्य माथुर ने, पहले आदित्य माथुर, फिर जसराज, ऋषभ, अब कृष्ण नागर। नाउ एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट आंसर। ठीक है, तो दैट इज द केस। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, इसी के रिलेटेड एक YouTube का देता हूं। तो YouTube में क्या होगा, सिमिलर देखना SHM होगा। सपोज आई हैव अ YouTube व्हिच इज लाइक दिस, अ वेरी थिन YouTube, and ठीक है ना, और मान लो YouTube का हाइट h है, ठीक है, हाइट h है, और मैंने क्या किया, ट्यूब के एक तरफ को थोड़ा सा पिस्टन लेके लिक्विड को नीचे करके पिस्टन हटा दिया। तो यानी बेसिकली क्या हो गया, YouTube में दोनों जगह हाइट h थे, मैंने क्या किया, एक तरफ प्रेस कर दिया नीचे, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ ऊपर की तरफ प्रेस होगा, छोड़ दो तो देखना रेस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। सो देयर विल बी ऑसिलेशंस। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। ठीक है, एक बार देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक बार थोड़ा याद करके देखो, हमने क्लास 11th में एक चीज विजुलाइज करना सीखा था कि अगर मान लो पेंडुल क्या होता है, एटवुड मशीन ऐसे होता है, तो हमने बताया था कि एक काम करो, इसको विजुलाइज करो कि एज इफ ऐसे है, तो इनके वेट्स तो नीचे की तरफ है M1G M2G, पर हम इसको सीधे कर देते हैं, तो हम इसको विजुलाइज करते हैं। सो दिस वी विजुलाइज एज, we visualize as what, like this, करते थे ना, M2G M1G, यहां पे ये हो गया M2G। तो इसको हम लोग विजुलाइज करते थे इस तरीके का सिस्टम लेके, इसमें भी हम लोग ऐसे विजुलाइज करेंगे। द मोमेंट इट बिकम्स लाइक दिस, लेट्स ओपन द पाइप लाइक दिस, यानी इसको विजुलाइज करो लाइक दिस, तो एक तरफ कुछ फोर्स आएगा, एक तरफ कुछ फोर्स आएगा, और फिर इसके वजह से क्या होगा ना, लिक्विड मूव करेंगे। अब सोचो कि सपोज मैंने इसको यहां पे कर दिया, हाइट x नीचे कर दिया, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले साइड में x ऊपर होगा। अब देखो, दोनों तरफ ये वाला लिक्विड अगर लेते हो, तो इन दैट केस अगर हाइट डिफरेंस आ गया 2x, सो हाइट डिफरेंस is equal to 2x. So therefore, pressure difference equal to 2x rho g, है ना, प्रेशर डिफरेंस h rho g, उससे रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। तो F रेस्टोरिंग क्या होगा, 2x rho g into A। देख लो अच्छे से, और इसके वजह से क्या होगा ना, पूरा लिक्विड वाला पार्ट मूव करेंगे, जैसे इसमें मूव कर रहे थे, जैसे इसमें मूव कर रहे थे ना हॉरिजॉन्टल, इफेक्टिवली वर्टिकल होगा, बट हमने जिस तरह से विजुलाइज करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इससे क्या होगा ना, मास ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 कैपिटल H। देख लो, 2 कैपिटल H इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द कॉलम, इनटू A वॉल्यूम आ गया, इनटू डेंसिटी मास आ गया, इनटू एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है ना।
तो मैं इसको भी ऐसे विजुलाइज करना चाहता हूं, अ ट्यूब इन विच दिस पोर्शन इज द लिक्विड, और दोनों तरफ से रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है और इस तरह से लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है। ये लिक्विड का मास है, दिस इज बेसिकली द मास ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन। यानी ए का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, देखो ए कैंसिल, रो कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा ना जी। एक लास्ट बात और है, मैंने यहां पे एक्स को नीचे किया है लिक्विड का सेक्शन, और अगर उसको छोड़ देता हूं तो एज अ रिजल्ट इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, यानी ऑपोजिट टू एक्स की ओर है। So therefore I can put minus also in the vector form. That's it. So therefore you get time period t is equal to 2 pi under root of h by g. Get this. 2 pi under root of h by g. Aryan has asked that Som has asked कि क्या initially दोनों तरफ h था? Yeah, that's right. बिल्कुल, चलो ठीक है। इसका भी आंसर जसराज आदित्य ने दिया है, और कुछ क्वेश्चन भी आया। सोम ने पूछा जैसे कि इनिशियल दोनों तरफ एच था क्या? बिल्कुल, दोनों तरफ कैपिटल एच हाइट था, फिर हमने डिस्टर्ब किया तो ऑटोमेटिक ऑसिलेशन शुरू कर दिए। दैट्स द थिंग। और अरियंत has asked that if a U-tube is filled with same liquid, they will always tend to be at same level. The answer is yes. अगर ये कोई भी ट्यूब फिल अप कर देते हो तो इन दैट केस नेचुरली अगर देखोगे तो सब अपने सारे उसमें क्या होगा ना, लेवल सेम रहेगा, और उसके लिक्विड सेम होने चाहिए। लिक्विड अगर अलग अलग होगा इन दैट केस हाइट भी अलग अलग होगा, ठीक है ना? दैट इज द आंसर, ठीक है ना? चलो, सो लाइक वी जस्ट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन लिक्विड्स एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लिक्विड प्रेशर एंड रिलेटेड डिस्कशंस। रिलेटेड डिस्कशन में दो चीजें आता है, एक है ऑसिलेशन रिलेटेड जो कि हमने अभी किया, और एक है फ्लोटेशन रिलेटेड। फ्लोटेशन रिलेटेड का मतलब हो गया रिलेटेड टू बुएंट फोर्स, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाट वी हैव डन टुडे। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी फ्लूइड्स के स्टैटिक्स अभी बचा है, आई थिंक फ्लूइड के स्टैटिक्स एक दो दिन में खत्म होगा, और जो भी फ्राइडे तक हम लोग करेंगे ना फ्लूइड का स्टैटिक्स, आई थिंक फ्राइडे खत्म हो जाएगा। तो दैट वुड बी द सिलेबस ऑफ योर सीपीटी नेक्स्ट वीक टिल दैट। और एसएचएम तो है ही, एसएचएम प्लस लिक्विड स्टैटिक्स, आई थिंक दैट इज ओके देन, ठीक है ना? चलो, आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना था बेटे? क्रिश कुछ पूछ रहे थे? यू आस्किंग समथिंग क्रिश? ओके, जो डिराइव करा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं लिया? हमने एच रो जी जब डिराइव किया था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं लिया? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में ऐड होगा। ओके, मैं समझ गया। देखो, व्हाट द क्वेश्चन इज दैट जब हम बुएंट फोर्स डिराइव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रेशर पता क्या आएगा? यहाँ पे प्रेशर आएगा P नॉट प्लस स्मॉल h रो जी, अगर ये स्मॉल h है तो, ठीक है? और अगर ये कैपिटल H है मान लो, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा पता है? P नॉट प्लस h रो जी। तो देयरफॉर जब तुम दोनों को माइनस करोगे तो P नॉट का इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये देखो, इधर से भी P नॉट प्लस समथिंग, इधर भी P नॉट प्लस समथिंग, इसलिए हमने तो लिखा ही नहीं था। हमने तो बोले देखो ऊपर से अगर प्रेशर P नॉट ऐड कर रहा है ऑन द लिक्विड तो वो चारों तरफ में बैलेंस हो जाएगा, एंड दैट वुड हैव नो रोल टू प्ले एज फार एज बुएंट फोर्स इज कंसर्न, ठीक है ना? दैट्स द आंसर, ठीक है? ये मैं चेक कर लो। ओके, आदित्य मात्र has asked कि एलन का शेड्यूल, आई होप एवरीबॉडी हैज फिल्ड अप द फॉर्म। अगर मान लो सब लोगों ने फॉर्म फिल अप कर चुके हो तो इन दैट केस जस्ट वेट, आई थिंक वी विल गेट अ नोटिफिकेशन सून रिगार्डिंग द शेड्यूल, ठीक है ना? मिल जाएगा, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं। वी विल कंटिन्यू टुमारो, दैट इज विद अगेन विद फ्लूइड स्टैटिक्स ओनली। सो सी यू टुमारो, फाइन, हैव अ गुड डे।